Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdul Hakim Sumro, Associate Professor of Physics at Government Girls Degree College, Sakran, District Shahid Nazirabad. आज जो मेरा टॉपिक है वो है variation of the g, small g. Small g is known as the acceleration due to gravity, due to the altitude and always due to the depth. So it means the variation of the g consists of two parts: variation of the g with altitude and variation of the g with depth. So first of all, I start the one part of the variation of the g, and this is called the variation of g with altitude. As we know that value of the acceleration due to gravity is not a constant property. It varies due to the height, means the distance, vertical distance. On the surface of Earth or near to the surface of Earth, the value of the g remains constant, and you know that its value is 9.8 meter per second square. But here our aim is the find the value of or determine the value of the g at some altitude, means the height from the surface of Earth, from the origin of the center of the Earth. So we here find the value of the acceleration due to gravity at some height from the surface of Earth. The value of the g on the surface of Earth is given in the equation number 1. G equal to gme upon re square. This equation of the acceleration due to gravity is derived from the law of universal gravitation. The small g indicates the acceleration due to gravity, and the capital G indicates the gravitational constant. Me, it is the mass of Earth, and Re is the radius of Earth, but here given as the Re square. This is the equation number 1. Now we find the value of the g at some height from the surface of Earth, and this given in this equation, and it is indicated by gh, where g is the acceleration due to gravity, h indicates the height from the surface of Earth. In this figure, this sphere is the show the Earth. From the P point to the center, it is the radius of the Earth, and from the surface of Earth to the height point, that is the Q. From P to Q, it is the height. And now we determine the value of the acceleration to gravity at some height from the P position to the Q. So at Q, this acceleration due to gravity will be indicated as a gh. So this equation of the gh, that is given in this equation number 2, the gh equal to gme upon
RE plus H square. Here we put the value of the RE as well as the value of the height. This will be the total distance from the center of the earth to the Q point. See at the figure. RE, it is the radius of earth, and in which we add the height. So this total distance from the center of earth to the Q will be RE plus H. So this will be the total distance from the surface, from the center of the earth to the Q point. So in this way we get the two values. First, the value of the acceleration due to gravity on the surface of earth, that is given in the equation number 1, and another equation for the acceleration due to gravity at some height, it is given in the equation number 2. So we here determine the value of the GH, means the value of the G acceleration due to gravity at the Q point. Divide the equation number 2 by equation number 1. So we get the GH upon G, because on the left hand side the equation 2 has the GH, and in equation number 1 at the left hand side it is only the G. So GH will be divided by the G, and on the other side the equation number 1 is the GME upon RE square, and in equation number 2 on the right hand side it is given as the GME upon RE plus H square. So we will solve this equation, and we get the GH upon G will be equal to the RE square upon RE plus H square. GME cancelled with the GME, and only the distance will be remaining. So the GH upon G equal to the RE square upon RE plus H square. But here we find the value of the G at some height and from the surface of the earth, and this will be given by GH. So this G will be multiplied with this value, and we get the G in bracket RE square upon RE plus H square, and bracket over. Further, we solve this equation and we get the GH equal to the G, and here we write the 1, and the value of the RE square will be put in with this value. So when we solve, we get the 1 upon RE square plus 2REH plus H square upon RE square, because RE plus H whole square, when we solve we get the RE square plus 2REH and plus H square, and divided by the RE square. When we further solve this equation, we have the 1 plus 2H upon RE plus H square upon RE square. As we know that the value of the height, it is very small value compared with the radius of the earth. So containing the high powers, these will be neglecting
they will be cancelled out, and only we have the 1 plus 2h upon Re, because this term having the high powers, so these will be neglected, but only we have the 1 plus 2h upon Re. After that, the GH equal to the G, and this value will be brought at this value, at this type. Then the power will be with the negative sign, -1. Now this equation GH equal to G 1 plus 2h upon Re power -1. अब इस इक्वेशन को हम एक थ्योरम होता है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, इसके जरिए हम इसको हल करेंगे। और जब हम बाइनोमियल थ्योरम के जरिए इसको हल करेंगे, देन वी गेट द GH equal to G and 1 minus 2h upon Re, and this equation will be equation number 3. This equation number 3 shows the value of the acceleration due to gravity decreases as the altitude increases. अब जैसे जैसे हम जमीन की सतह से ऊपर जाएंगे एट द हाइट, तो इस तरीके से जो वैल्यू जो है G की वो डिक्रीज होती जाएगी। और ऐसी भी पॉइंट आ सकती है जिस पे वैल्यू जो है बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगी एट एल्टीट्यूड। और इसी सेम तरीके से अगर हम जमीन के अंदर की तरफ जाएंगे टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर पॉइंट पे भी जो है G की वैल्यू 0 ही होगी। अब इसके बाद हमारा यानी इसी वेरिएशन ऑफ G विथ अल्टीट्यूड का दूसरा पार्ट, जिसको हम वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ कहते हैं। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। अब यहां पर जो है हमें वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ उसकी डिटरमिनेशन करनी है कि डेप्थ में G की वैल्यू किस तरीके से वेरीज होती है, किस तरीके से चेंज होती है। तो इसके लिए हमें कुछ डेरिवेशंस जो हैं वो यहाँ पर हमें लिखनी है, ड्राइव करनी है। सो कंसिडर ए पॉइंट P on the surface of Earth. The value of G at that this point P is given as G GME upon R square. अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जो जिस तरीके से हम पहले भी वेरिएशन ऑफ G विथ अल्टीट्यूड में इक्वेशन नंबर 1 लिख चुके हैं कि G एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सतह पे या नियर अबाउट जमीन की जो सतह होती है उस पे G की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है, और यही जो है इक्वेशन नंबर 1 में हमने दी है। स्मॉल G इक्वल टू द कैपिटल G ME अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 which shows the value of the G at the surface of the earth. अब यहाँ पर जो हमारा जो मसला है वो है डेप्थ का, गहराई का। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें देखना यह है कि एक हमारी जो ज़मीन है वो स्फीयर है। अब स्फीयर की जो है हमारी ज़मीन में मास भी तो है, और उसके अलावा उनका वॉल्यूम, क्योंकि ये गोल है, स्फीयर है, तो उनका वॉल्यूम भी जो लाजमी होगा। और इसके अलावा इनकी डेंसिटी, कसाफत क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो वो हमें वैल्यू जो है सबसे पहले हमें मालूम करनी होगी कि इस सतह के ऊपर जो है मास की वैल्यू, जमीन की मास की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ अर्थ एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये मुकम्मल गोला है, मुकम्मल स्फीयर है। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन जो है डेंसिटी की, वो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसमें प्रीवियस टॉपिक्स में,
कि रो इक्वल टू एम ई अपॉन वी ई। रो इट इज द सिंबल फॉर द डेंसिटी, ये कसाफत की निशानी है, सिंबल है। और एम ई अपॉन वी ई, ये एम ई मास आवर्त है, वी ई वॉल्यूम आवर्त है। और इसी क्वेश्चन में से हमने मास आवर्त बनाई है, तो एम ई इक्वल टू रो वी ई, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर जो है हमें वॉल्यूम जो है वो वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी होगी और डेंसिटी के साथ उसको ज़रब देना होगा, क्योंकि हमें मास आवर्त चाहिए। ज़मीन की सतह तक जो इनमें मास है ज़मीन का, जो एक कांस्टेंट वैल्यू भी है, पहले भी हम डिटरमाइन कर चुके हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है 6 × 10⁻24 kg। लेकिन डेंसिटी के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से जो मास आवर्त जो है इक्वेशन नंबर 2 में से हमें मालूम करना होगा। तो मास आवर्त इक्वल टू द रो और वीई यानी वॉल्यूम आवर्त, क्योंकि वॉल्यूम जमीन का हमें मालूम करना है और जमीन जो है गोला है, स्फीयर है, इट इज द स्फीयर। देन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ विल बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला 4/3 πRE³। अब ये वैल्यू जो है वीई की इक्वेशन नंबर 2 में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वी की जगह पे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल जाएगी, वी गेट द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 3 इज एम ई इक्वल टू द रो 4/3 πRE³। नाउ पुट दिस वैल्यू of the ME from equation 3 in equation number 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। इक्वेशन नंबर 3 की ये वैल्यू मास आवर्त की, ये इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पे ME की जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो इक्वेशन नंबर 4 में मौजूद है, जी। फिर उसके बाद कैपिटल जी, ये जी कैपिटल, और एम ई की वैल्यू ये जो इक्वेशन 3 की है वो है रो 4/3 πRE³। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, और उसके बाद नीचे है RE², ये RE²। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये देखें RE³ है और ये RE² है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर जो है RE सिंगल बचेगा। और फिर इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन जो हमें 4 मिलेगी वो होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द दिस डेंसिटी। तो G will be equal to the capital G rho 4/3 πRE। This is the equation number 4। उसके बाद हमें इस P पॉइंट से अंदर गहराई की तरफ आना है, वही गोइंग इनवर्ड फ्रॉम द सरफेस अर्थ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल हम P से इस पोजीशन तक हम पहुंचते हैं जहां पर गहराई जो है वो डेप्थ जो है, डिस्टेंस जो है सरफेस से लेकर इस पोजीशन तक जो है वो है D। लेकिन जमीन O से लेकर P तक जो है ये कहलाता है रेडियस ऑफ अर्थ। ये अब ये रेडियस ऑफ अर्थ में से जब हम ये डिस्टेंस माइनस करेंगे D की वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू, तो फिर हमारे जो है यानी इस पोजीशन से ये जो है इस यहां से लेकर ये माइनस करना है ना हमें, तो ऊपर से लेकर यहाँ इस पोजीशन तक आने में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि RE - D। तो इस तरीके से यानी GD का मतलब है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द डेप्थ। और इस तरीके से हमें इस सिचुएशन में अफेक्टेड मास भी मिलेगा, क्योंकि अब ये मुकम्मल गोला ही नहीं है जो पहली क्वेश्चन में हम मालूम कर चुके थे। अब इनकी गहराई जो है, गहराई में हम जा रहे हैं तो इनका मास जो है, इनकी डेंसिटी भी अफेक्टेड होगी।
तो अब यहाँ पर जो है अफेक्टेड मास जो है इस पोजीशन तक जो है यहाँ पर पी से लेके यहाँ तक जो है ये एम ई डैश हम इसको लिखेंगे, इट इज द अफेक्टेड मास ऑफ द अर्थ। और उसके अलावा आर ई स्क्वायर लिखना है हमें, लेकिन आर ई स्क्वायर तो पहले इक्वेशन में लिख चुके हैं हम। अब यहाँ पर जो है ये टोटल जो डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या होगा, इट विल बी द आर ई माइनस डी। तो आर ई माइनस डी लिखना है और उनको स्क्वायर करना है। तो जी डी विल बी इक्वल टू जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस डी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। नाउ by using equation number 3, the effective mass me of the earth at the depth g from the surface of earth is given as, अब हमें क्या है कि अफेक्टेड मास कैलकुलेट करना है हमें, जिस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 3 में यानी मास ऑफ द अर्थ मालूम किया था, वहां पर तो टोटल मास था ना लेकिन यहाँ पर जो अफेक्टेड मास है ये मुकम्मल गहराई मुकम्मल गोलाई इसकी नहीं है। यहाँ पर इस गहराई तक जो है ये एक छोटा सा स्फीयर बन जाता है, वो माइनस कर देंगे इस बड़े से स्फीयर में से। तो इस सिचुएशन का जो बाकी अफेक्टेड मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एम ई डैश इज नोन एज द अफेक्टेड मास इक्वल टू द रो और 4/3 पाई आर ई माइनस डी होल क्यूब्ड। ये अफेक्टेड मास की जो इक्वेशन हमने लिखी है वो इक्वेशन नंबर 6 के तौर पे लिखी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब ये एम ई डैश की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करना है, और जी डी की जो है वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट द डेप्थ, वो हमें उसके लिए रिलेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो जी डी ये जो है इक्वेशन नंबर 5 जी डी की है वैल्यू, जी एम ई डैश। अब एम ई डैश जो इक्वेशन नंबर 6 में से हमने इसमें पुट करनी है। वी पुट द वैल्यू ऑफ द एम ई डैश इन इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर जो है ये हमारी जो जब ये सब्स्टिट्यूशन होगी तो फिर हमें इक्वेशन जो है ये मिलेगी, और ये होगी जी रो 4/3 पाई और ब्रैकेट में आर ई माइनस डी होल क्यूब्ड डिवाइडेड बाय आर ई माइनस डी होल स्क्वायर। ये जो है ये वैल्यू हमें लिखनी है। ये एम ई डैश की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई, और जी की जो वैल्यू है वो तो जी खुद ही हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है ये जो टर्म्स हैं आर ई माइनस डी वाले ऊपर है क्यूब में और नीचे है स्क्वायर में, जब इनको सॉल्व करेंगे तो बाकी हमें ये आर ई माइनस डी जो है वो मिलेगा, जो इक्वेशन नंबर 7 में ये शो हो रहा है। तो जी डी विल बी इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस डी। दिस इक्वेशन नंबर 7, it is given by the acceleration due to gravity at the depth. But now we solve these two equations. इक्वेशन नंबर 7 जो है उसको इक्वेशन नंबर 4 से हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन नंबर 4, देन वी गेट। अब वही सेम तरीका कि जो इक्वेशंस जो होती है जिनमें 2 साइड्स होती हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है यानी 7 नंबर की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है जी डी। तो 4 इक्वेशन की जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो सिर्फ जी है, तो जी डी को जी से तकसीम कर देंगे। और इस सेम तरीके से इक्वेशन नंबर 7 की जो है राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो है जी रो 4/3 पाई और ब्रैकेट में आर ई माइनस डी। और उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 4 में जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू ये मिली है वो है जी रो 4/3 पाई आर ई। अब आप देखेंगे सेम जो टर्म्स हैं वैल्यूज जो हैं ये एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, जी जी में कैंसिल हो गई, रो रो में कैंसिल हो गई, 4/3 में कैंसिल हो गई, पाई में कैंसिल हो गई, बाकी बचे डिस्टेंसेस, ऊपर बचे आर ई माइनस डी और अपान आर ई। तो ये हमारी जो इक्वेशन हुई जी डी अपान जी इक्वल टू आर ई माइनस डी अपान आर ई।
अब मजीद उनको सॉल्व करना है हमें, क्योंकि जीडी मालूम करना है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ, यानी ये गहराई की हिसाब से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उनकी रिलेशन बनानी है हमें। तो ये जी जो है इस वैल्यू के साथ, इस टर्म के साथ आकर उनको ज़रब देंगे, ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आएंगे और फिर उसके बाद जो है ये वैल्यू ऑलरेडी आर ई माइनस डी अपान आर ई यहाँ पर ये मौजूद है, इनको हम और मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर ई में कैंसिल होगी तो यहाँ पर होगी 1, एक मरतबा जाएगा ना, तो आर सिर्फ 1 और फिर उसके बाद माइनस डी अपान आर ई, ये माइनस डी अपान आर ई और आगे ये जी। तो इक्वेशन नंबर 8 जो है वो हमारी इक्वेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दिस इक्वेशन 8 shows that the value of the acceleration due to gravity decreases as depth increases, यानी गहराई जितनी बढ़ेगी, जितनी बढ़ती जाएगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी इसी सेम तरीके से डिक्रीज होती जाएगी। और एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ द जी इक्वल टू द 0। अब अगर ये वैल्यू देखें, अब इसमें आप डी जो है अगर इनको हम आर ई के बराबर रखते हैं, डी यानी इट इज द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपको पता है कि ये डी को रिप्लेस करके उनकी जगह पे आर ई लिखेंगे इस इक्वेशन नंबर 8 में, तो आर ई अपान आर ई ये कैंसिल होंगे एक दूसरे में, तो एक बचेगा, आर ई को आर ई से तकसीम करेंगे तो 1 होगा और 1 में से वो 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा और जी की वैल्यू आगे जो है 9.8 होगी तो उनसे 0 को ज़रब देंगे तो जवाब क्या होगा 0। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ एट द सेंटर पोजीशन विल बी इक्वल टू द 0। तो सेंटर पोजीशन जमीन की जो है वहां पर वैल्यू जो है जी की 0 ही होगी। थैंक्स, अल्लाह।